Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, this is the class number 5. Let's talk about the complete feminism in the sections. Actually, I divided into sections. So first section where I talked about the points or statement you can say regarding basic concepts and definitions of feminism theory. Now first point we have feminism as a literary theory critiques the patriarchal structure that has historically marginalized women's voice in literature. Yes, of course, because this point is talked about कि जो आपका फेमिनिज्म लिटरेरी थियोरी है वहाँ पे क्रिटिक किया जाता है पेट्रियार्टिकल यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपका जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनके स्ट्रक्चर उन पर जो बेस्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ फॉलोड इन दैट सोसाइटी. सो उसको क्रिटिक किया जाता है इन फेमिनिज्म क्रिटिकल थियोरी. राइट नाउ दैट हैज़ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज वुमेन. जो आपका क्या कर रहा था, ये जो पेट्रियार्टिकल स्ट्रक्चर था ये क्या कर रहा था आपका हिस्टोरिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. इफ आई टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर सोसाइटीज़ मार्जिनलाइज किया जा रहा था किनको, विमेन की वॉइस को इन लिटरेचर. राइट एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज एक्सप्लोर्ड दिस concepts. Now the second point we have the personal is political. Now what is this? This is the phrase, most important phrase regarding feminism, became a central slogan of second wave feminism. So आपने ये बात ध्यान में रखना है, personal is political. I have talked about in detail in my last video, so I will not repeat it. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पर्सनल इज पॉलिटिकल है बिकेम अ सेंट्रल स्लोगन बना था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का. नाउ हाईलाइटिंग हाउ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर. राइट जहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा था कि जो ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स है उसको किस तरीके से पर्सनली एक्सपीरियंस किया जाता है. Let's move on the number third, where they talked about feminist literary criticism seeks to expose gender bias in literature and to recover lost or overlooked women writers. Yes, of course, ये जो आपका feminist literary criticism है यहाँ पे क्या किया जाता है, they seeks what they seeks to expose what they expose gender bias यानी कि भेदभाव, जो जेंडर को लेकर भेदभाव किया जाता है लाइक मेल एंड फीमेल में, तो उसी जेंडर बाइस को क्या किया जाता है लिटरेचर में एक्सपोज किया जाता है एंड टू रिकवर लॉस्ट, और जो भी रिकवर किया जाता है लॉस हुआ है लाइक ओवरलुक्ड किया जाता है विमेन राइटर्स को. क्योंकि जब कभी भी जेंडर बायस की बात आती है दैन हमेशा जो डोमिनेशन होता है वो किसको लेकर होता है, विमेन को लेकर. सो ऑफ कोर्स उसी को विमेन राइटर्स को ही ओवरलुक्ड किया जाता है, रिकवर किया जाता है इन लिटरेचर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नंबर 4, gynocriticism, most important term, or you can say this is the concept that we study in feminism theory. Now this term is given by or coined by एलन शॉल्टर. ये एलन शॉल्टर का टर्म है दैट वाज coined by एलन शॉल्टर, in which he focused on studying women writers and constructing a female literary tradition. Now you will have to understand in detailed manner this particular phrase, not phrase actually मैं कहूँगी concept gynocriticism, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में बनता है. इनफैक्ट एग्जामिनर आस्क टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस in the statement form, so please be prepared for this also. This term is given by Alan Shorter. Right now the next 5 one we have patriarchy refers to a social system in which men hold primary power, dominating in roles of leadership and control. So of course ये जो patriarchy क्या रेफर करता है, ऐसा सोशल सिस्टम इन विच मैन जो होता है होल्ड क्या होल्ड करता है, प्राइमरी पावर यानी कि इम्पॉर्टेंट पावर, सिस्टम ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ मैन, दैट इज पैट्रियार्की. और यहाँ पे डोमिनेट किया जाता है इन रोल्स ऑफ लीडरशिप एंड कंट्रोल. ऑफ कोर्स यहाँ पे डोमिनेट एंड कंट्रोल्ड किया जाता है. बट दे टॉक्ड अबाउट, टू whom they talked about actually, women. Right, so please make sure about each and every points that I discussed to you all, because you never know same point statements as a statements you can get in your examination. Right now the next point we have intersectionality. This is also important concept that we study in feminism
which emphasize that gender operation means the operations of women, right, is interlinked with other forms of oppression such as race, class and sexuality. ये जो आपका वर्ड है ना intersectionality, this became after race, class and sexuality. It means ये जो आपका concept है, it talks about कि जो feminism है जिसमें ऑपरेस किया जाता है जेंडर को, वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, लाइक रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 7, androcentrism. Now androcentrism is another concept that we study in feminism, refer to the practices of centering मेल पर्सपेक्टिव्स. ऑफ कोर्स जहाँ पे एंट्रोसेंट्रिज्म होता है इसका मीनिंग ही यही होता है, जो कौन सा एक आप बोल सकते हो फेज़ है इन विच प्रैक्टिस होती है किसकी, जहाँ सेंटर होता है कौन, मेल पर्सपेक्टिव, यानी कि दिस इज़ बेस्ड ऑन मेल पर्सपेक्टिव, राइट. तो इसी को हम एंट्रोसेंट्रिसिज्म कहते हैं इन कल्चर, हिस्ट्री एंड लिटरेरी ट्रेडिशन. इन माई लास्ट वीडियोज आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल्ड मैनर दिस कॉन्सेप्ट, सो आई विल नॉट रिपीट हियर. ओके. नाउ द नंबर 8 वी हैव feminist theory critiques the male gaze, a concept explored by Laura Mulvey. Now Laura Mulvey gave this important concept male gaze that have been asked in your examination many time. ये आपका PYQs है. Now please keep in your mind, और ये male gaze in which or associated with feminist theory. Now you will have to just be prepared about it, okay. In her work on visual pleasure and narrative cinema, she talked about this particular concepts male gaze regarding feminist theory, right. Now the 9 number points we have gender essentialism, opposed by postmodern feminists, is the belief that men and women have inherent natural characteristics. Now this is absolutely right. What they talked about here कि जो gender essentialism होता है, essential करना gender को like male and female को, opposed by postmodern feminist. postmodern feminist जो हैं वो opposed करते हैं किसको, gender essentialism को, and they talked or they believe that मैन एंड वुमेन हैव इनहेरेंट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. उनके क्या है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट वी कैन नॉट चेंज, राइट. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट. सो आई हैव टोल्ड यू, और in fact I have discussed with you all types of feminism that really play important role to understand this complete topic. Now why you have to study that particular types of feminism, because from that area question frame in your examination, क्योंकि जितना भी feminist writer हैं they belongs to their own जो भी उनका important points है उसको लेकर वो कुछ writers ऐसे हैं feminist, those talked about gynocriticism, for example Alan Shorter, and आपके some feminist writer those give importance towards the intersectionality, right. And some of the writers those talked about सेंट्रिसिज्म, राइट. इन फेमिनिज्म की इसका क्या रोल है, तो ये सभी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स को वो कौन से फेज से एसोसिएटेड है, तभी आपका ये फेमिनिज्म क्लियर होगा एंड यू विल बी एलिजिबल टू आंसर दी स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट. नाउ number 10 point we have feminism in literature includes both the critique of male authored text and the celebration of female authored ones, right. जो आपका feminism है in literature में include करता है both the critics, ठीक है, male को भी and of course celebrate किया जाता है female authored ones. for example के लिए आपके जेस मिल अर्ली आपके ये फेमिनिस्ट राइटर हैं एंड इनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो अभी आपसे 27 का जो PYQ हुआ है, अभी आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है 225 में, जिसका रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं सब लोग, वहाँ पे भी आपसे जेएस मिल से क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेल ऑथर्ड इन फेमिनिज्म लिटरेचर, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन.
सी गाइज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस वीडियो इज। देखो मैंने किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड किया है पॉइंट्स को, सो दैट यू विल हैव ग्रेट क्लैरिटी टूवर्ड्स द टॉपिक। नाउ ये जो बी सेक्शन है, व्हाट वी हैव इन दिस सेक्शन, वी हैव वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इन दिस वीडियो और इन दिस सेक्शन बी वी विल डिस्कस अबाउट 11 to 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द फेम्स ऑफ, जो हम वेव्स स्टडी करते हैं फेमिनिज्म में, उसके रिलेटेड और उससे एसोसिएटेड पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगी, सो दैट आपको क्लैरिटी आए टूवर्ड्स दी फोर वेव्स वी स्टडी इन दी फेमिनिज्म एंड वी आर लिव इन द फेज ऑफ फोर्थ नंबर का जो वेव है, वी आर लिव इन दिस। ओके, जो हमारा स्टार्ट कब से हुआ था, 210 to present। प्लीज कीप इन योर माइंड, in my short video I have talked about 4 phases of feminism. Now let's talk about 11 point what they talked here. फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आपका लेट 19 से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक ड्यूरिंग एक्टिव था, प्राइमरली फोकस्ड ऑन विमेंस लीगल राइट्स। और यहाँ पे क्या फोकस किया जा रहा था, लीगल राइट्स। नाउ ये दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कि फर्स्ट फेम जो था आपका, फर्स्ट वेव था विच इम्पॉर्टेंस टू गिव विच, आप बोल सकते हो टॉपिक टू इम्पॉर्टेंस। तो कौन सा टॉपिक था जिसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, लीगल राइट्स, स्पेशली द राइट्स टू वोट। क्योंकि ऐसा मानना था कि जब हम राइट्स देंगे वोट का विमेन को, तभी इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में आएगी। दैट्स वाई दे फोकस्ड वेरी प्राइमरली टूवर्ड्स दी वुमेन्स लीगल राइट्स। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 12 वी हैव मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। आपको पता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कंसीडर द ग्रैंड मदर, इनको ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिस्ट बोला जाता है, क्योंकि शी वर्कड अर्ली। अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट वेव था उससे भी अर्ली शी एक्चुअली एक्टिव, राइट। सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपकी ग्रैंड मदर है ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी की। इनका जो टेक्स्ट था ये, अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन 1792, दैट वाज कंसीडर फर्स्ट मेजर टेक्स्ट, राइट, इन फेमिनिज्म। और आप कह सकते हैं इज ऑफन कंसीडर द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, राइट। नाउ प्लीज कीप इन योर माइंड, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द क्वेश्चन। नाउ द 13 पॉइंट, जॉन स्टुअर्ट मिल। अभी पीछे मैंने आपको इनका बात बताया, जेएस मिल, ये भी आपके इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर है। और इनका ये जो टेक्स्ट है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, जो अभी 27 को आपका जून को एग्जामिनेशन हुआ है ना, 225 को, क्वेश्चन फ्रॉम दिस राइटर, राइट। और इनसे स्टेटमेंट आपसे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ दिस टेक्स्ट रिटन 1869, यहाँ पर आर्ग्यू किया इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को लेकर, बेस्ड ऑन लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी, इन विच ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से जो विमन है उसको कंसीडर किया जाता है लाइक अ स्लेव, एक परमानेंट स्लेव विदाउट जिसे आप कुछ पे नहीं करते, और एक ऐसा सर्वेंट जो आपके होल लाइफ तक आपको वर्क करता है, आपका घर संभालता है, ईच एंड एवरी वर्क डू। और उसको क्या समझा जाता है, व्हाट दे कंसीडर टू दैट, ऑफ कोर्स slave and the maid, right? So these types of argument he just discussed in this particular work of him. Now next we have 14th number, second wave feminism start from the 1960s to 1980s, which emphasize reproductive rights, workplace equality and the critique of डोमेस्टिसिटी, राइट। अभी पहले तो बात कर रहे थे राइट टू वोट के लिए, नाउ द सेकंड फेज आ गया है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क प्लेस और इक्वालिटी की बात होने लगी है, द क्रिटिक ऑफ द डोमेस्टिक। तो धीरे धीरे जो वुमेन्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो आगे बढ़ती जा रही है, अपने आप को मतलब इंक्लूड करती जा रही है सोसाइटी में, लिटरेचर में, बट धीरे ग्रेजुअली, राइट। तो वो डिमांड, उनकी जो डिमांड है वो ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, इन्हेंस होती जा रही है towards their society, right? Now the next topic we have, or the point number 15, Betty Friedan. Now Betty Friedan, most important feminist writer, the famine mystic, इनका most important text है, which repeat in your examination every 6 months, right? अभी भी आपका repeat हुआ था, अभी मैं 27 के एग्जाम्स की बात करूँ, then this was present। 1963 publication है, in which she critic प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। वो एक ऐसी प्रॉब्लम का बात कर रही है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर जिसका कोई नाम ही नहीं है, अमंग सब born housewives, of course related to feminist. Now the next one we have 16 number, Simone de Beauvoir, most important feminist writer, wrote The Second Sex 1949, most important, in fact repeated in your examination, assert, क्या उन्होंने बोला इसमें, one is not born but rather becomes a woman। किसी भी गर्ल चाइल्ड का जन्म जब होता है तो उसको वो जन्म से नहीं होता, वो जो बच्चा जो भी है, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको सिखाती है कि तुम वुमेन हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें पढ़ना कम है,
तुम्हें सोसाइटी में इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करना एज द मेल काउंटर पार्ट आपके पार्टिसिपेट करते हैं, आपको वो सभी चीज़ें मतलब कि एक्सेप्ट करनी है जो दूसरी औरतें करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी सोसाइटी हमको, हमारी फैमिली हमको सिखाती है। वी आर नॉट बोर्न, हम इन चीज़ों को लेकर बोर्न नहीं होते, ये सब हमें सिखाया और हमें समझाया पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड टू अडल्ट, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने यही इंपॉर्टेंट बात कही है आपकी सिमोन डी व्योर ने। प्लीज़ कीप इन योर माइंड है कि इनका जो एग्जैक्ट आइडिया है, सिमोन डी व्योर हो गए, मैरी वोllstonecraft हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गए, बैटी फ्रीडन हो गए, इन लोगों के अपने अपने आइडियाज़ हैं जिनको लेकर इन्होंने टेक्स्ट लिखा है। तो आपको उन सभी आइडियाज़ को सेग्रीगेट करके अपने माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है। फेमिनिस्ट राइटर सभी हैं, राइट, जो भी फीमेल के राइट्स को लेके, उनकी इंपॉर्टेंस को लेके, उनके रोल को लेके बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट को लेकर बात करते हैं, दीज आर फेमिनिस्ट राइटर। बट दे हैव देयर ओन स्पेशल आइडियाज़, अपने स्पेशल आइडियाज़ के साथ वो आए हैं राइटिंग्स में, राइट। सो उन आइडियाज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि बैटी फ्रीडम का आइडिया क्या है, मैरी वोllstone का आइडिया क्या है, वर्जीनिया वुल्फ का आइडिया क्या है, वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वन्स ओन, राइट, 1929 इनका ऐसे इन विच ही टॉक्ड अबाउट कि मुझे स्पेस चाहिए, हमें वुमेन को स्पेस चाहिए जैसे कि हम अच्छे से राइटिंग कर सके, हमें कुछ मनी चाहिए सो दैट वी कैन डू आवर ओन वर्क्स, राइट, इन राइटिंग करियर्स। तो ये डिमांड आपका वर्जीनिया वुल्फ का था। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिमांड्स के साथ आपकी जो वेमेन राइटर्स थी, दे केम अहेड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अभी देखिए सिमोन डी व्योर के बाद 17 नंबर कैट मिलर सेकंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन्होंने लिखा था 1970। दिस ऑल्सो केम इन योर एग्जामिनेशन, इन विच इंट्रोड्यूस द टर्म पेट्रियार्की इनटू फेमिनिस्ट लिटरेरी एनालिसिस, राइट। इन्होंने पेट्रियार्की करके ये जो टर्म था इसे कॉइन किया है इन विच टेक्स्ट सेक्सुअल पॉलिटिक्स में, राइट। तो दीज थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इट, और यही मेरा पर्पस था, दैट्स वाई आई जस्ट सिक्योर काइंड्स ऑफ पॉइंट्स फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज देम एंड यू डन विद इट, राइट। नाउ द 19 पॉइंट वी हैव थर्ड वेव फेमिनिज्म के ऊपर आ जाते हैं। अभी थर्ड वेव आपका 1990 से लेके 2000 तक है, ड्यूरिंग एक्टिव रहा। फोकस यहाँ पे क्या गया है, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरसेक्शनैलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट डिस्कस्ड इन वेव थर्ड। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये थर्ड वेव था, इसमें एक रिबिका वॉकर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फेमिनिस्ट राइटर थी जिन्हें कंसिडर किया जाता था पायनर ऑफ थर्ड वेव, क्योंकि उन्होंने एक टर्म भी कॉइन किया था विच नेम थर्ड वेव करके उन्होंने टर्म कॉइन किया था, राइट। सो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है, इनफैक्ट मिल चुका है, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड ऑफ इट ऑल्सो, राइट। नाउ द 20 नंबर पॉइंट्स वी हैव जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, 1990. This important text repeated in your examination since 2014. जो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, वहाँ पर भी ये सेम टेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन मैचिंग्स क्वेश्चन में। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड, और अभी तक ट्रेंड में है। तो फेमिनिज्म ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो फ्रॉम द अर्ली, राइट, जो फ्रॉम द अर्ली एज से लेकर आपके प्रेजेंट जो 4 वेव है फेमिनिज्म का, उन सभी टेक्स्ट का आपको लिस्ट अपने पास प्रोवाइड करके रखना है। यू हैव टू सिक्योर, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज ये लिस्ट आपको इतना हेल्प करेगा। सेम लिस्ट आपको अगेन एंड अगेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नाउ यू जस्ट आंसर योर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसका ईजिली आंसर कर देंगे इफ़ यू हैव दैट लिस्ट, राइट। सो ये कंप्लीट लिस्ट आपको अपने पास सिक्योर करके रखना है। एंड लेट्स मूव ऑन। आर्ग्यू, यहाँ पे इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया है कि जो जेंडर है परफॉर्मेटिव, नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड। जो आपका जेंडर है वो क्या है, परफॉर्मेटिव, यानी कि उसका परफॉर्मेंस के थ्रू हमारा जो बिहेवियर होता है, मुझे सूट सलवार पहनना है, मुझे मेकअप लगाना है, लाइक मुझे अपने हेयर लॉन्ग रखना है, ये क्या है, मुझे इस तरीके से बात करनी है, दीज आर दी बिहेवियर ऑफ जो हमें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और यू कैन से हमें सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मेल। तो ये हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है, ये हमारा परफॉर्मेंस है, ये बायोलॉजिकल फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि विमेन को बाल बड़े करने का ही मतलब राइट है, वो छोटे बाल नहीं रख सकते। तो ये चीज़ ही इन्होंने बात करने की कोशिश की जूडिथ बटलर ने सोसाइटी में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। अभी बेल हुक्स, काफ़ी सारी देखिए फेमिनिस्ट राइटर मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड किए हैं पॉइंट्स में, लाइक बेल हुक्स एम्फसाइज द फेमिनिज्म मस्ट एड्रेस रेस, क्लास एंड जेंडर टुगेदर। तो यहाँ पे इन्होंने एम्फसाइज किया है जो फेमिनिज्म है उसमें क्या एड्रेस करना चाहिए, रेस को भी, क्लास को भी एंड जेंडर टुगेदर को भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इस पर्टिकुलर थीम को
आप बोल सकते हो इम्पैक्टेड है ये जो आपका पूरा लिटरेरी थियोरी है फेमिनिज्म, इट्स इम्पैक्टेड बाय race, class and gender, of course. Now देखिए, let's 22 points. Rebecca Walker, I talked about her, is credited with coining the term third wave. देखिए आ गया ना third wave feminism in 1992, right? Please keep in your mind, and the pioneer of the third wave of feminism. Now the fourth wave फेमिनिज्म 210 से लेके प्रेजेंट यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म. अभी भाई 210 टू प्रेजेंट में अभी इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है. दैट्स वाई दे टॉक्ड अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कॉम्बेट इशूज़ लाइक ऑनलाइन एब्यूज़, बॉडी शेमिंग, जेंडर फ्लूडिटी. ये सभी वो थीम है दे टॉक्ड अबाउट, राइट. नाउ बिकम अ डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द फोर्थ वेव. Now we have 25 option point. Actually here we have some movement associated with the fourth wave of feminism, like Me Too movement initiated by Tarana Burke, right, and it popularized in symbolizes the activism of fourth wave feminism. Now please keep in your mind. Now let's move on ahead. So guys, let's move on the third section where we talked about major thinkers and texts से associated कुछ मैं points लेकर आई हूँ 26 to 40 numbers of points. Like Virginia Woolf, A Room of One's Own 1929 argues that a women need money and space to write fiction. अभी मैंने आपको पीछे बताया, of course same thing she talked about. Now the 27 points we have. Alan Shorter identified three phases of women's literary history: feminine, feminist and female. These three literary history, or you can say three phases of मतलब फेमिनिज्म का इन्होंने आइडेंटिफाई किया है. दीज आर फेमाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल. प्लीज कीप इन योर माइंड कौन है ये? एलन शॉल्टर, राइट. नाउ द हेलन सिक्सर्स, लाफ ऑफ मेडुसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच शी एडवोकेट ए क्रीचर, फेमाइन, और जिसे आप बोल सकते हैं विमेंस राइटिंग. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन फेमिनिस्ट थियोरी. सो ए क्रीचर फेमाइन विच मीन्स विमेंस राइटिंग, given by Helen Sixtus in the text Laugh of the Medusa. Now rooted in the female body, which associated rooted of female body. Now next we have Lucy Irigaray and Julia Kristeva are associated with French psychoanalytic feminism, क्योंकि they are differ from the their nation. like ये आपकी फ्रेंच की हैं, लाइक सिक्सन हो गई, क्रिस्टेवा हो गई, एंड आपकी इरिगैरी हो गई लूसी. तो ये आपकी फ्रॉम फ्रेंच साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट है. मैंने साइको एनालिटिक आपको फेमिनिज्म भी डिस्कस किया था टाइप ऑफ फेमिनिज्म में. नाउ दीज टू एसोसिएटेड विद इट. Now number third point we have Julia Kristeva's concept, the semiotic. Now Julia Kristeva associated with the concept of semiotics many times have been asked in your examination in matchings question. Oppose the patriarchal symbolic order in language which is associated, right. Now the next or 31 point we have, but they talked about Toril Moi. Toril Moi ने sexual textual politics लिखा था. That was 1985 publication in which she distinguished between Anglo-American and French feminist criticism. Now please keep in your mind 32 we have Andrea Rich, of Women's Born 1976, in which she critique motherhood as a patriarchal institution. जो motherhood होता है वो क्या होता है? patriarchal institution होता है. वहीं तो हमें सिखाया जाता है what we have to do in our society. So same thing she discussed in this work. Now the 33 point we have Sandra Gilbert and Susan Kuber, The Mad Woman in the Attic. Most important 1979 text in which she talked about the Bertha Mason. जो Bertha Mason आपका कैरेक्टर था, राइट, एक मैड वुमन का फ्रॉम द जेन एयर, जो आपका जेन एयर टेक्स्ट आया था, राइट. तो उसी को इन्होंने यहाँ पे अगेन दे टॉक्ड अबाउट और एग्जामाइन किया है. हाउ फीमेल कैरेक्टर्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय मेल ऑथर्स, किस तरीके से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय मेल. 34 the term double colonization is post-colonial feminism refer to women being oppressed both by patriarchy and colonialism, right. Now the 35 we have Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak, 1988. most important repeated PYQ of your questions, whether the oppressed women can be truly represent, क्या truly उनको represent किया जाता है oppressed women को in the society. So this is the question which she explored in this
work. 36 point we have order lord. ये famously stated इन्होंने किया, the master's tool will never dismantle the master's house. This is most important statement stated by order lord. Now this is also most important feminist writer. Next we have Mary Daly's Gynecology 1978. This is the work is a radical feminist. देखिए this is the part of radical feminism जो मैंने आपको type of feminism में कराया था, in which she critic of patriarchal religion and culture. Now next 38 we have Monique Witting Straight Mind. Monique Witting, अब देखिए मॉर्निंग विटिंग भी आपकी फेमिनिस्ट राइटर हैं. यू एक्चुअली डिड नॉट नो अबाउट दिस राइटर, सो यू मस्ट नॉलेज, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी फेमस राइटर बट दे एक्चुअली इंक्लूड दैम इन दी ऑप्शंस. और आप ये सोचते रह जाएंगे कि इसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड बी प्रिपेयर्ड. ओके, नाउ मॉनिक विटिंग द स्ट्रेट माइंड 1992 critics heteronormativity and challenges the category of women itself, right? Now the 39 point we have Nawal el-Shaddai women at point zero. ये इनका वर्क है women at point zero, जहाँ इन्होंने क्रिटिक किया है patriarchal control over women in Arab society. तो basically she talked about Arab society and the condition of women, right? Now 40 number point we have Shulamit Firestone the dialectic sex. ये आपका भी 27 का जो एग्ज़ाम हुआ है PYQ है वहाँ पे भी प्रेजेंट था. इन विच शी envisioned a world where technology liberates women from biological reproduction. तो यहाँ पर उन्होंने बात की है, इनफैक्ट शी विज़न उन्होंने एक बार दिखाने का कोशिश किया है कि जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से उन्होंने लिबरेट किया है वुमेन को फ्रॉम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से. नाउ लेट्स मूव ऑन दी अहेड. दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो और होप आपका ये कंप्लीट फेमिनिज्म हो जाएगा अच्छे से strong. Section number D, in which we talked about application and critical framework regarding feminist theory. Now 41 point we have feminist criticism challenge करते हैं the traditional literary canon by recovering neglected work by women. जितना भी women के द्वारा वर्क लिखा गया और जिसे नेगलेक्ट किया गया है उसी को रिकवर किया जाता है किसमें, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, जहाँ पे वो चैलेंज करते हैं किनको, ट्रेडिशनल लिटरेरी कैनन को. नाउ दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहीं से आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं एंड आप कंफ्यूज होते हैं, राइट. नाउ द 42 वी हैव द टर्म फीमेल एस्थेटिक refers to the stylistic and thematic choices found in women's writing. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, you can easily understand. Now the 43 point we have feminist critic often analyze the silencing of women. देखिए साइलेंस करना women को, इनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया इन्होंने, क्या है, what does it meaning, उनकी वॉइस इन दी मेल ऑथर टेक्स्ट, मतलब उनको साइलेंस किया जाता है. कब साइलेंस किया जाता है, व्हेन द मेल ऑथर टेक्स्ट में, जो जितने भी मेल ऑथर टेक्स्ट होते हैं वहाँ पे जो आपका वुमेन का जो वॉइस होता है उसको क्या किया जाता है, साइलेंसिंग ऑफ वुमेन. सो दिस इज फेमिनिस्ट क्रिटिक, एनालाइज करते हैं इसको लेकर भी, राइट. नाउ द 44 पॉइंट वी हैव द मेल गेज. अभी हमने लॉरा मल्वे का पढ़ा था ना. द मेल गेज एज theorized by Laura Mulvey is a lens through which women are objectified in visual and literary arts. तो ये एक तरीके का लेंस है जो आपको ये दिखाता है कि किस तरीके से women को ऑब्जेक्ट किया जाता है. women को क्या ऑब्जेक्ट किया जाता है, उनको विजुअलाइज करने के लिए एंड लिटरेरी आर्ट्स में, राइट. नाउ द 45 पॉइंट्स वी हैव फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट करते हैं फिक्स्ड मीनिंग ऑफ जेंडर. जो जितना भी जेंडर का फिक्स्ड मीनिंग है उसको अपोजिट है वो एजर्ट, और उनका मानना है दैट आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स. डिस्कोर्स के थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है उसको कंडक्ट किया जाता है, राइट. नाउ द 46 पॉइंट वी हैव इको फेमिनिज्म ड्रॉज पैरेलल्स बिटवीन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर एंड द ऑपरेशंस ऑफ वुमेन. देखिए जिस तरीके से हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जब हमारा मन करता है कोई भी पेड़ को, ट्रीज को कट कर देते हैं, सेम वे ऑपरेशंस ऑफ वुमेन. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बिटवीन नेचर एंड दी वुमेन, बिकॉज दीज टू आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्ले मेजर रोल इन आवर सोसाइटी. और ऑफ कोर्स इन दिस वर्ल्ड, ये जो आज आपका वर्ल्ड चल रहा है, तो उस वर्ल्ड के पीछे अगर कोई दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, दैन फर्स्ट इज़ आर नेचर एंड द सेकेंड वी हैव वुमेन, राइट, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, राइट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओनली वुमेन, मेल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट जो एक वुमेन का भी एक एक स्पेस है, so actually they need to get this also, right. Now the 47 points where they talked about feminism
Feminist Marxist critics argue that capitalism reinforced women's subjugation थ्रू अनपेड डोमेस्टिक लेबर. देखिए अनपेड डोमेस्टिक लेबर से क्या मतलब है, यहाँ पे जितना भी हाउस होल्ड वर्क्स होता है, द वर्क जो वुमेन टू फ्रॉम दी मॉर्निंग टिल दी नाइट वो करती है, तो यहाँ पे उन्हीं वर्क के बारे में बोला गया है कि ये अनपेड डोमेस्टिक जो लेबर वो करती है. तो उसको उसके उस पर आर्ग्यूमेंट किया गया है. कहाँ कब करती है, लाइक इन कैपिटलिज्म, जो कैपिटल सोसाइटीज़ है उसमें उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि वहाँ पे सब्जुगेशन किया जाता है. राइट नाउ 48 points we have the concept of gender performativity implies that gender roles are continuously enacted through behavior. अभी मैंने पीछे आपको बता दिया हमारा बिहेवियर क्या करता है, हमारे जेंडर को परफॉर्म, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हमारे जेंडर को क्या करती है, एक्चुअली शो ऑफ करती है. जैसे कि विमेन का अलग रहता है बिहेवियर एंड द मेल का अलग रहता है. नाउ 49 वी हैव इन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट discourse the term third wave women is problematized as a western construct. इसको problematize बोला गया है in the western construct में. it actually factual, so you can easily understand. And the last of today's point we have 50 feminist literary history aim to reconstructed a lineage of women writers traditionally omitted from mainstream narrative. देखिए किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उससे जो वुमेन है उसको ट्रेडिशनली क्या किया हुआ था, उसको वहाँ से वाइप्ड आउट किया हुआ था. नाउ वही चीज़ वो अभी दोबारा चाहती हैं, उस पर रिकवर करना चाहती हैं अकॉर्डिंगली दिस feminist literary theory. So guys, here I have done with complete feminism. टोटल आपकी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं. फर्स्ट वीडियो जहाँ मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग फेमिनिस्ट, एंड द सेकेंड वीडियो जहाँ मैंने आपको टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म बताया है. एंड दिस इज़ दी टुडे इज़ माई फाइनल वीडियो जहाँ मैंने आपसे जितना भी एरिया मैंने आपको पास्ट वीडियोज़ में कवर कराया था उसका पूरा आपको मैंने निचोड़ दिया है. राइट, सो फाइनली ये आपका पूरा कंप्लीट फेमिनिज्म हो गया. अगर आप ये 3 वीडियोज़ देख लेते हैं तो यू हैव डन विद योर UGC नेट इंग्लिश एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपने अपना फेमिनिज्म कंप्लीट कर लिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अगर आप फेमिनिज्म को और अच्छे से करना चाहते हैं तो अपने पास वो लिस्ट सिक्योर करके प्लीज़ रखिएगा. आपके मोर देन एक्चुअली 40 और 45 टेक्स्ट टोटल होंगे जो आपके फेमिनिस्ट टेक्स्ट जो रिपीट होते एग्जामिनेशन में, उन्हीं सबको आपने अलॉन्ग विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल द इम्पॉर्टेंट आइडिया सिक्योर करके रखना है. आई विल अपलोड दैट वीडियो बट नॉट नाउ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड मैं वीडियोज़ अभी बना रही हूँ. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ मैं आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और बिफोर दी 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन ही प्रोवाइड करती हूँ. सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल टॉक अबाउट दी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में रिपीट होता है. तो वी हैव एक्चुअली कवर्ड फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड दिस इज द फेमिनिज्म. नाउ लेट्स सी विच विल द next one. If you have desire to you can just comment me below ki which topic would you like to I will upload next video. Right, till then bye bye, we will meet in next video.